everyone, welcome to my YouTube channel Homeo Hits. Let's begin medicines from compositive family. There are a lot of medicines from compositive family. Here are 46. Among these, 9 are important medicine which are given in Allen keynote. Before going forward, first subscribe to my channel if you have not subscribed it. Okay, let's discuss general characteristics of compositive family. In compositive family, nearly all members of this family have mental irritability, nervous, excited, fidgety and worried, hysterical tendency. You can find all these mental symptoms in Abrotenum, Senna, Chamomilla. Okay, then sadness, mental depression, also nervous affections like convulsions, chorea, means related to nerve problems. Generally, all these medicines have left-sided affections, like in Abrotenum have left ovary affection, in Senna left foot spasmodic motion, and in Eupatorium vertigo of having sensation falling to left. Erigenon left ovary and hip pain. In Nephalium left-sided sciatica. Taraxacum having left-sided stitching pains. Okay, then our next point is complaints associated with coldness. Members of compositive family have generally sensitive to cold air. They have marked action upon blood muscular fibers of the blood vessels, venous congestion and hemorrhagic tendency. We will study hemorrhoids in Abrotenum. Arnica having bruises, Bellis and injury medicine. In Calendula, hemorrhage after tooth extraction. In Helianthus, you can see nasal hemorrhage. And in Melipholium, having bright red hemorrhage. Many more. And so, ninth point is injuries, bad effect of injuries, including blows, falls, bruises. Chamomilla, Calendula, Melipholium, all these are medicine of injuries. Many of the medicines of compositive family is especially given to children like Chamomilla, Senna, Abrotenum. Especially given not only for children. Next point is sensitive to cold open air. These medicines are generally sensitive to cold open air, that is, they are chilly. Of general sensation of soreness, lameness, bruised feeling is present. Action upon respiratory mucous membrane. They are good medicine for respiratory diseases. Have rheumatic affection, they suffer from pain in bones and joints. Next, most of the remedies of this group is useful in cancerous affections. Okay, many of these medicines are effective in cancers. Has a general action upon urinary system. Marked action upon skin. These medicines of compositive family have very good action upon respiratory system, joints, urinary system and skin. These properties was in general. Let's discuss medicine one by one. So, our first medicine is Abrotenum. Common name of Abrotenum is southernwood, family compositive, constitution, marasmus of children with marked emaciation, especially legs. Also find in Iodum sanicula tuberculinum. सो एब्रोटेनम का जो बच्चा होगा वो एकदम पतला दुबला सा होगा, ठीक है, स्पेशली उसके लेग्स बहुत इमेशिएटेड होंगे, एकदम पतले. द स्किन इज़ फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स. बिल्कुल जैसे मेरस्मस में होता है कि स्किन उसकी लटकती रहती है वो फोल्ड्स में, तो वैसी स्किन होती है इसकी. नेक के मसल्स अगर फोल्ड्स में हैंग कर रहे हैं तो उसके लिए मेडिसिन नैट्रोम्यूर और सैनिकुला है. मेंटल जनरल्स में है चाइल्ड इज़ इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल. एकदम परेशान कर देने वाला बच्चा, ठीक है, कोई बात नहीं मानेगा, अचानक से बिल्कुल वायलेंट हो जाएगा.
इनह्यूमन इसलिए बोला है क्योंकि उसको हर वक्त कोई ना कोई क्रूअल चीज़ें करता रहता है। जो क्रूअल चीज़ें करता रहता है वो ह्यूमन की पर्सनालिटी नहीं होती है। तो इनह्यूमन मतलब मैनरलेस बिल्कुल। एज शोन इन पिक्चर, ऐसा शरारती बच्चा। फिजिकल जनरल्स में है रेवनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। इसमें और मेडिसिन है आयोडम, नेट्रोम्यूर, सेनिकुला, ट्रिपरक्लाइनम। हेड में इन मेरस्मस, हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप। अनदर मेडिसिन इज एथूजा। तो मेरस्मस में इसके लेग्स वीक हैं प्लस उसकी नेक होल्ड नहीं कर पा रहा है हेड को। सो 2 medicines are given in marasmus, head weak, cannot hold it up, are Ethusa and Abrotinum. Face looks old, pale, wrinkled. Here also 2 medicines are given, opium and Abrotinum. In young age, patient of Abrotinum looks pale, wrinkled. In GIT, alternate constipation and diarrhea, limdaria. मतलब समटाइम्स पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहेगा और समटाइम डायरिया, ऐसे अल्टरनेट करता रहेगा। कॉन्स्टिपेशन डायरिया, कॉन्स्टिपेशन डायरिया, ऐसा। लिंटेरिया भी देखने को मिलता है। लिंटेरिया इज अ टाइप ऑफ डायरिया विच अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर पास्ड इन स्टूल। एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। इस वीक के साथ क्रैम्प्स भी होंगे इसमें। कॉलिक मतलब सडन पेन हो रहा है स्टमक में, उसके बाद इसको लिम्स में क्रैम्प्स हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब आफ्टर या फॉलोइंग कॉलिक। Rheumatism for the excessive pain before swelling commences from suddenly checked diarrhea or other secretion, alternate with hemorrhoids with dysentery. गाउट्स में या आर्थराइटिस के प्रॉब्लम में हमें देखने को मिलता है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा, उधर जहाँ पे पेन होता है वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। इसमें स्पेसिफिक ये है कि पेन के बाद स्वेलिंग आती है। पहले पेन होगा बहुत ज़्यादा, कंप्लेंट आएगी पेशेंट से कि बहुत दिनों तक पेन हो रहा है, उसके बाद स्वेलिंग आएगी। रिमेटिज्म फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशंस, मतलब कोई भी सिक्रेशन या डिस्चार्ज, डायरिया कह लें, तो अचानक से डायरिया हो रहा था, रुक गया, तो उसके बाद रूमेटिज्म स्टार्ट हो गया, तो उसमें एब्रोटिनम है। ऑल्सो रूमेटिज्म अल्टरनेट्स विथ हेमरॉइड्स और डिसेंट्री। तो रूमेटिज्म हेमरॉइड से क्या कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है, मतलब हेमरॉइड उसके बाद रूमेटिज्म, रूमेटिज्म उसके बाद हेमरॉइड, रूमेटिज्म और हेमरॉइड्स अल्टरनेट हो रहे हैं। इसके साथ डिसेंट्री भी देखने को मिल रहा है। डिसेंट्री इज़ लूज मोशन, उसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, तो उसे डिसेंट्री बोलते हैं। इससे पहले अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया पढ़ा था। नाउ गाउट, जॉइंट्स स्टिफ स्वॉलन विद प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। एब्रोटिनम में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। जॉइंट्स कैसे, स्वॉलन और उसमें प्रिकी सेंसेशन, जैसे कोई चुभो रहा है कुछ, और एंकल्स रिस्ट में बहुत पेन होगा, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, ठीक है। इसमें लेमनेस एंड सोरनेस वाली सेंसेशन होगी, मतलब घाव जैसी फीलिंग कि कहीं पे चोट लग गई है वैसी। मेरिस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वनली, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। फीवर में ग्रेट वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिव फीवर विथ चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड। सो प्रोस्ट्रेशन के साथ फीवर है इसमें, फीवर हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर मतलब उसके लोएस्ट पॉइंट के टेम्परेचर और हाईएस्ट वाला 1.4 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। 1.4 डिग्री सेल्सियस इज़ ह्यूज डिफरेंस। इतने हाई टेम्परेचर में वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। स्किन इचिंग, चिलब्लेंस, एगेरिकस में भी है। रिलेशन आफ्टर हिपरसल्फ इन फरंकर, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इम्प्ल्यूरिसी, when a pressing sensation remains in affected side impending respiration। फरंकल के केस में जब हिपरसल्फ काम ना करे तो एब्रोटिनम दे दो। प्ल्यूरेसी में एकोनाइट और ब्राइनिया के बाद जब प्रेसिंग सेंसेशन रह जाए, ठीक है, मतलब प्ल्यूरेसी ठीक हो चुकी है बट एक सेंसेशन जो प्रेसिंग है वो बचा रह गया हो, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब हम एब्रोटिनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
प्लूरेसी टर्म दिया गया है प्लूरा में इन्फ्लेमेशन के लिए। एब्रोटेनम ख़त्म हो गई। कंपोजिटिव फैमिली के बाकी जो मेडिसिन्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। Thanks for watching Homeo Hits.